A very warm good morning to our esteemed guests, respected faculties and fellow students. I am Divya Chaudhary from BCom CA second year. Today I am glad to introduce you to a seminar on entrepreneurship. Entrepreneurship is the driving force behind innovation, economic growth and job creation. It empowers individuals to turn ideas into reality, fostering a culture of self-reliance and business acumen. This seminar is not just about business, it's a platform for personal and professional growth. Without further ado, let's commence the program. I would like to invite our honorable guest, Mr. Hemant Atalusher, and our program coordinator, Dr. Kailash Patel, Mrs. Purnima Chaurasia, along with all faculty to inaugurate the event by lighting the lamps and garlanding Ma Saraswati. Thank you all. Now following the tradition of Atiti Deva Bhava, now I request Dr. Kailash sir to formally welcome our honorable guest, Mr. Hemant Atalusher, with a symbolic life-giving plant. Thank you, sir. Today we are privileged to have our esteemed guest, Dr. Hemant Atalusher. He has done MSc in Organic Chemistry, Diploma in Financial and Tax Management from DAVV, retired as Senior General Manager, Commerce, Industry and Employment Department, Government of India. Since 1978, he worked as Manager and General Manager in this work as ADO in Government Quality Marking and Testing Laboratory from 1981 to 1985. And work as General Manager, Furniture Unit and Timber Department Plant, MP State Industry Corporation on deputation. Also has Senior General Manager in MP Udyogik Kendra Vikas Nigam Ltd Indore on deputation. Now I invite our guest speaker, sir, to share his insights and to enlighten the student. I have been assigned for your, say, topics of entrepreneurship, and the first topic is business ideation. In business ideation, what is the process? Yeah. In business ideation, it is a process of developing and conveying prescriptive ideas to others. It is in 3 stages. This is a thinking or a plan. Thinking of a business or a plan. So first is idea generation. The how is idea generated, and second is idea selection. After generation the idea, how we select the idea. Suppose we select for some particular business, then we go for idea development, and then third stage will be development of the idea. So then idea converts into some business, that is a development. So there are 3 stages of any idea. And next,
A business edition examples are a production manager in a company always think on reduction of production cost and excelling the quality of product. What a production manager thinks, he thinks about the reduction of cost of the product, his product. Product or number of maybe more than one products. And excelling the quality of product. Every time he thinks about the excelling the quality of his product. Suppose his product's quality is up to A grade now, then he will go for A plus. Even that after that he will go for A double plus, like that. Business sector is always task imagery. Business sector is not an achievement imagery. Business is just business. We are having a target, we are having a goal, and going for business. It's a routine thing. We are establishing some shop or like that. But the service and manufacturing sector is achievement imagery. Because in service and manufacturing, we have to achieve something. We have to achieve some big goals, big targets. Both looks for good quality products to get a target or goal in required time. Time is the most important. So suppose we started something, then there is a little bit 6 months period is there to establish new enterprise, because it takes time in lot of things to come up and in new venture. Please go next. Next. You can ask any question. This is an interactive session, not a lecture. Next level. Now this, you can draw this even cycle of the plan. The cycle of plan is first you plan, organize, execute, and review. This is a cycle for every plan. Even you start your home marriage planning. You have to plan, organize the persons, organize the things and material, and execute and review what happened at the last day. And in second marriage, you will go rectify that for some shortfalls if coming. So planning is a continuous cycle. Now to set up any new enterprise, ask yourself. ASK, ask yourself. To set up a new enterprise, ask yourself. A for attitude. Attitude for any invention or creativity is this activity is attitude. Your attitude towards looking towards the business. Then skill, technical experience and parental background. Skill comes from parental backgrounds also. Suppose a carpenter, he always get a family background of carpentry. Or say a business oil mill person, say one of the boy has his father as a oil mill industrialist. He can think of oil mill very well because he has a family background. And third is knowledge. ASK. A for attitude, S for skill, and K for knowledge. So knowledge come from existing environment and books. From books, just say you can go MSME Development Institute and get the idea from project profiles and all, how this business will run. There are a number of, project profiles are there in MSME Institute. It is in Polo Ground. You can go there and sit in library and see the lot of many project profiles there to get the idea and knowledge of the project or business. Example, an IT person will develop IT services. If a person having a skill of IT, then he will think of the IT services projects. Then an electronic engineer, he will think of electronic business and embedded system. Embedded system is that system in which he makes some hardwares. That is the embedded system in electronics. A civil engineer will go for bridge and road construction. An architect will go for designing and developing beautiful building structures.
A carpenter will develop wood articles and improve design and furnishings. Carpenter will excel in his carpentry work. We are just seeing that in this carpentry now architecture is coming in carpentry also these days, and we are seeing these beautiful furnishings in some buildings and like that. Even in here also you can see the carpentry work, how the beautiful walls are there. Next, please. You can ask any question if at all you want. Mechanization helps high yields of the product with minimization in cost of production. So previously the things were going with hand-operated things, hand-operated machines. Then electricity came, and then power-operated machines came, and now sophisticated machines are coming up for industrial productions. So mechanization always helps in high yields of the products with minimization in cost of production. It also saves the time of manufacturing. A hand-operated system take a time, some motorized system take a time, but sophisticated mechanization saves the time also as well as the money and reduce the cost of production. Therefore, family background linkages in an existing business, attitude, knowledge and skill, creativity with a group discussion of new entrepreneurs results possibility to establish a solid plan. When you will get a solid plan, you have to discuss with yourself and your friends how this project will be, and you can have a good group discussions. So many people tell their ideas, and you can get a very good idea and establish a solid plan in that way. Next. Creativity is boosted by brainstorming. In group discussion, what we are doing? We are making a brainstorming. And we are, a lot of thoughts are coming up, and we are brainstorming, and group discussion, we find a very good result. Encourage collaboration. Collaboration is a must, because if we collaborate with already working industry, then it's a very good. Suppose some players are making some good quality products, and we collaborate with them and make the products according to their quality, then we can collaborate and establish a good industry with them. Change your environment and surroundings. You have to change your environment and surrounding, and you should come out of your comfort zone. You don't be in your comfort zone. You should try to go out of your comfort zone. Then and there you can be an entrepreneur. Generate lots of new ideas, not just good ones. Embrace failure. You should embrace failure also, because everything won't happen very good. A lot of failures may come in your way. So embrace failures, take lesson from the failure, rectify the problem, avoid delaying decisions. Don't delay the decisions. You have to take decisions well in time. Otherwise, your industry will suffer for that. Stimulate yourself. Don't use shortcuts. In industry, you don't use any shortcut. Just in studies, we use shortcut. We can just read this, some series are like that, and just give the exam. This is not like that. Next, please. Analyze SWOT. Do you know what is SWOT? What is SWOT analysis? You know? Strength, weakness, opportunity and threat. So this is in all fields. SWOT is in student field and every field, industry field, business field, everywhere SWOT comes. SWOT means strength, weakness, opportunity and threat. For growth and development, evaluate ideas time to time. You always evaluate your ideas, because you make an idea, you got 3 more ideas, then evaluate your ideas. Time to time. This is a regular process, continuous cycle. Don't try to change society, change yourself. You can't change this society. Society is such. This is the society. You change yourself. Then you can become an entrepreneur. Concentrate on your work 24/7.
एक इंडस्ट्रीज जो रहता है वो 24 घंटे और 7 दिन काम करता है। अगर देखो आप कोई मतलब व्यापारी है मंडी का, छावनी का, तो उससे रात के 11 बजे भी भाव पूछ के सोएगा वो कि आज का भाव क्या था, पूछेगा ना वो? नहीं पूछेगा। तो वो उसका कंसंट्रेशन कितना रहेगा काम में? 24 घंटे और 7 दिन। तो उसको कोई संडे वनडे नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर को संडे नहीं होता है। नेक्स्ट, 3 ifs to improve creativity. There are 3 ifs to improve creativity. Do you know what is creativity? Can you tell something? This is an interactive session. It is not a lecture. What is creativity? Please, can anybody say? What is creativity? Yeah. More? One more? There are 2-3 things are there in creativity. Good, very good. Research and development is also creativity. Invention is a creativity. There are a lot of things are there in creativity. So there are 3 ifs to improve your creativity. First if I change my object system as per social need, and I should change the object or system as per social need. Social need is important in my product. If I am giving some product to the society, industrial product, then social need is must. अगर किसी को जरूरत ही नहीं और हम बनाए जाएंगे, साबुन बना दिया हमने और वो क्वालिटी का नहीं बनाया, तो वो सोसाइटी को जरूरत ही नहीं, तो वैसी इंडस्ट्री क्या चलेगी? नहीं चलेगी। इफ व्हाट वुड आई इंप्रूव, आई शुड हैव लॉन्गर पीरियड। अगर मैंने कुछ इंप्रूव किया है तो इट शुड बी फॉर ए लॉन्गर पीरियड, मतलब और भी मैं एक्सेल करता जाऊं फॉर एटलीस्ट फॉर 10 years, ताकि तब तक कोई ट्रेंड फैशन कुछ चेंज हो गया है तो मेरे को 10 साल तक का तो मेरा प्रोजेक्टेड, मतलब मेरा इंडस्ट्री को करना ही पड़ेगा, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को। थर्ड इफ आई हैव $1 million, व्हाट वुड आई डू? अब एकदम आपको मैंने $1 million दे दिए, आप क्या करोगे? ये इफ सामने आया तो क्या करोगे बताओ? ये इफ है, आपको मैंने $1 million दे दिया, कौन बनेगा करोड़पति में? आप करोड़पति बन गए तो एकदम क्या करोगे? क्या करोगे 1 करोड़ का? बताओ बताओ। 1 करोड़ आपको दे दिया मैंने, आप जीत गए, पजल जीत गए, करोड़पति। क्या करोगे 1 करोड़ का? बताओ। एकदम से 1 करोड़ मिल गया आपको, जीत गए आप, क्या करेंगे बताओ ना? एक बताओ, कोई भी बताओ, आप क्या करोगे बताओ? कोई भी खड़े होकर बताओ, क्या करोगे बताओ? 1 करोड़ एकदम मिल गया आपको, क्या करोगे? बोलो। चलो नेक्स्ट। अरे वाह। Creativity is boosted by creative thinking. Creative thinking is must for any creativity, any sort of creativity. अगर आप कोई अच्छा पेंटिंग कर रहे हो, या कोई अच्छा गाना गा रहे हो, या कोई सितार सीख रहे हो, ऐसी कुछ भी क्रिएटिविटी कर रहे हो, तो देयर शुड बी ए, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग इज देयर। अगर आपको तबला सीखना है तो तबले की थिंकिंग नहीं होगी, तब तक आप खाली उंगलियां नहीं चलाओगे तबले पे, है ना? क्रिएटिव थिंकिंग होना जरूरी है। तो ऑलवेज ड्रीम ए बिग। तो जब भी आपको ड्रीम करना है कि तबला सीखना है, तो मैं कांगो भी सीखूंगा, तबला भी सीखूंगा, और तबले के सारी चीजें सीखूंगा, मृदंग भी सीखूंगा और पखाज भी सीखूंगा और सब सीखूंगा। तो फिर वो पूरा क्या बिग थिंकिंग हो गई। खाली तबला लेके छोड़ नहीं दूंगा मतलब। फिर प्रैक्टिस कोहेसिव आइडियाज। तो कोहेसिव आइडियाज को प्रैक्टिस करना जरूरी है कि मैं मेरे आइडिया से चलूंगा तो कोई नागार्जुन नहीं हो कि जो लोहे से सोना बना के और मैंने बंद करके रख दिया इंडस्ट्री मेरे को इंटरेक्शन करना पड़ेगा, मेरे टाइप की इंडस्ट्रीज वालों से बात करना पड़ेगी। वो उसके क्या आइडिया है, मेरे क्या आइडिया है, उन दोनों को मिलकर और नया आइडिया क्या बन रहा है, ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। तभी तो इंप्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, नहीं तो कहां से होगा। एक्सप्रेस योर आइडियाज ऑन एन एलिवेटर पिच। जैसे सीढ़ी लगी है ना कोई चीज की, तो आइडिया हमेशा ऊपर जाएंगे, ऊपर की सोचो, हमेशा बिग प्लान करो, ऊपर का प्लान करो। एक सीढ़ी से कहाँ जाएंगे अपन? दूसरी पे जाएंगे, तीसरी पे जाएंगे, चौथी पे जाएंगे और फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे कि नहीं? सीढ़ी से जाएंगे तो आइडिया शुड बी ऑन एलिवेटर पिच। ये अपने को 3 सेंटेंस में बताना, बताएगा कोई 3 सेंटेंस में? आइडियाज एलिवेटर पिच पे कैसे जाएंगे? 3 सेंटेंस में बताओ, बताओ कोई बताओ।
भाई आइडिया इट इज ऑलवेज ऑन एलिवेटर पिच। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, भाई आप इस स्टेज पे उस पे जा रहे हैं प्रोग्रेस करके, तो एलिवेटर पिच पे गए तो 3 सेंटेंस में बताना है, बताओ चलो वो तो डिटर्मिनेशन है, तो आप 3 सेंटेंस में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसे। फिर बॉन्ड्स योर आइडियाज टू योर टीम, आपकी जो वर्किंग टीम है उसको आपके आइडिया बॉन्ड्स करो, और अदर पर्सन इन द नेक्स्ट लेवल, आप जैसे आप कोई फर्स्ट फ्लोर पे गया हुआ है उसके साथ भी शेयर करो। आप नीचे हो तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे शेयर करोगे तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जल्दी पहुंच जाओगे नेक्स्ट लेवल। ओवरऑल द नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योर कैन बी वेल डिफाइंड एज, नेचर में NATURE, नेचर क्या है? NATURE, N फॉर नीड, जैसी नीड होगी वैसी इंडस्ट्री डालेगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं तो मेरी नीड क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं, तो नेचर, मेरा नेचर कैसा हो जाएगा? वो मेरा नेचर उसकी मेरी नीड के हिसाब से होगा। फिर सेकंड इज एस्पिरेशन, तो मेरा बी इलेक्ट्रिकल क्या है, तो मैं एस्पायर हूंगा काय के लिए? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए। फिर टेम्परामेंट, मेरा टेम्परामेंट कैसा है? मेरा टेम्परामेंट मतलब पेशेंस है मेरे में इतने कि मैं इंडस्ट्री के जो लॉसेस वगैरह जो कुछ प्रॉब्लम्स आएगी वो सहन कर लूंगा क्या? टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी है। फिर तीसरा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, कोई मैंने वेंचर ले लिया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लिया है, कोई काम ले लिया है, तो वो उसके मेरे को अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है कि नहीं मेरी इतनी कि मैं एक पर्टिकुलर उस लेवल पे उसमें वर्क कर सकूं। और फिर R है रिसोर्सफुलनेस, अब ये ले तो लिया, फिर मेरे पास मनी, मटेरियल, मैन, इन चीजों 3M बोलते हैं उसको, मनी, मटेरियल, मैन, ये रिसोर्स होते हैं। रिसोर्स का मैंने अरेंजमेंट करा है कि नहीं? मतलब कोई मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन चालू की तो ये कर सकता हूं, नहीं करूंगा ना। तो फिर क्या चाहिए? रिसोर्सफुलनेस। अपनी रिसोर्सफुलनेस क्या है कि मैंने जैसे अगर घर पे एक मकान ही बनाना है तो फिर सब मेरे को मतलब ठेकेदार लाना पड़ेगा, कारीगर लाना पड़ेगा, मटेरियल लाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा कि नहीं? नगर निगम से परमिशन लेना पड़ेगी। तो रिसोर्सफुलनेस मेन कौन हुआ? अपन हुए जो एंटरप्रेन्योर रिसोर्सफुल हुआ हो, तो रिसोर्सफुलनेस बहुत जरूरी है। फिर लास्ट में इन्वायरमेंट, आज का इन्वायरमेंट क्या है? अब जैसे मकान ही बनाना है तो आपको झाबुआ में तो बनाओगे नहीं, इंदौर में बनाओगे ना, तो इन्वायरमेंट क्या है वहां का? नहीं तो कोई गांव में जाके बनाओगे क्या? इन्वायरमेंट इंदौर के प्लॉट पे बनाओगे तो इन्वायरमेंट वहां का क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, मार्केट रिसर्च है सब्जेक्ट तो बड़ा सिंपल है सुनने के लिए, पर बहुत टफ है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। मार्केट रिसर्च यानी ऐसा सिंपली कोई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे नहीं कि आपको टीका लग गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब और कुछ भी फिगर दे दिए, ऐसा नहीं। अपने काम के मतलब मार्केट का सर्वे करना है वो। इट्स ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड देयर नीड्स। आज का फैशन क्या चल रहा है, आज का ट्रेंड क्या चल रहा है आपके प्रोडक्ट का, बहुत महत्वपूर्ण है वो। मतलब किस ट्रेंड पे अपना प्रोडक्ट है, अगर उस क्वालिटी का उस लेवल का अपन नहीं बना पाएंगे तो अपन सक्सेस नहीं हो पाएंगे। टू गेट एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड इन सर्वे। स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ टारगेट ग्रुप पॉपुलेशन। अब अपन अपनी एक पेरीफेरी है, उस पेरीफेरी में अपन मार्केट अपने इंडस्ट्री का ऑपरेट कर रहे हैं। समझो अपना इंदौर रीजन कर रहे हैं, अपने इंदौर रीजन पेरीफेरी होगी, तो उसका टारगेट को पॉपुलेशन कितनी है, मतलब इंदौर संभाग की पॉपुलेशन कितनी है, और पॉपुलेशन में अपना प्रोडक्ट यूज करने वाले कितने हैं। समझो पॉपुलेशन 3 करोड़ है और अपना प्रोडक्ट यूज करने वाले उसमें कितने, 50 लाख है ना, सपोज एग्जांपल। तो वो 50 लाख अपना क्या हो गया, टारगेट ग्रुप हो गया, टारगेट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो गया, है ना। फिर डाटा ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब अपन ने इंडस्ट्री कोई चालू करी है और रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है तो उस इंडस्ट्री को नहीं चालू करना है। अपने रीजन में अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है या बाहर से हम इंपोर्ट करके उतना जितना चाहिए उतना रॉ मटेरियल नहीं ला पा रहे हैं तो उस इंडस्ट्री को मत चलाइए। तो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी देखना मार्केट सर्वे में बहुत जरूरी है। फिर थर्ड आपका है डाटा ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब आपको टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं मिले और अपने काइनेटिक होंडा डाल ली थी फैक्ट्री अपने पीतमपुर में और जापान से पूरा पार्ट आके असेंबल होता था और वो काइनेटिक होंडा फिर नहीं चली क्योंकि यहाँ पे पंक्चर खोलने वाले से उसके टायर नहीं खुले। काइनेटिक होंडा की क्यों बंद हो गई, क्योंकि पूरी इंपोर्ट कर ली टेक्नोलॉजी, यहाँ कोई जानकारी नहीं और इतनी बड़ी यूनिट डाली काइनेटिक होंडा की
स्कूटर की पहले लोगों ने जो खरीदी उसके बाद बंद हो गई वो। क्यों हो गई? ये मतलब ये वो चलो हो गया। तो ये आपके रिसोर्सेस अपने को यहाँ नहीं मिले, रिसोर्सेज यहाँ नहीं मिले ना, उसके अपने को उतने टेक्निकल इंजीनियर्स नहीं मिले, असेंबलिंग के वो जो मतलब पूरा जो लाइन बनना थी वो नहीं बनी। और वही केंटर आयशर वालों ने कर लिया वो काम। केंटर ने भी असेंबलिंग लाइन बनाई और पूरा जापान से इंपोर्ट किया था, पर उन्होंने अपना व्यवस्थित काम किया और काइनेटिक होंडा वाले नहीं कर पाए। तो ये रिसोर्सफुलनेस, अच्छा, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द रीजन, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट, कंट्री एंड अब्रॉड। आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो अपन कंट्री तक की तो बात करते ही करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं आईएसओ लेवल का आप, तो यू कैन थिंक अबाउट द अब्रॉड प्रोडक्ट्स आल्सो, अदर कंट्रीज आल्सो एज वेल। नेक्स्ट, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, डोर टू डोर सर्वे ऑफ एंड यूजर्स टू असेस साइज ऑफ द मार्केट। अब एक मार्केट का एक साइज अपने को असेस करना पड़ता है कि अब आप अपनी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन सपोज करो 3000 मेट्रिक टन पर एनम की है, तो 3000 मेट्रिक टन पर एनम से ज़्यादा का मार्केट है कि नहीं अपने पास, नहीं तो प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा। मार्केट अपने पास 1500 मेट्रिक टन का, 3000 का बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माल डंप हो जाएगा, यूनिट बंद हो जाएगी। तो यू हैव टू असेस साइज ऑफ द मार्केट। मार्केट का साइज पहले असेस करके अपनी कैपेसिटी से मैचिंग होना चाहिए उसकी। बाइंग कैपेसिटी एंड नीड्स ऑफ द टारगेट परचेजर, टारगेट परचेजर की बाइंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है। मतलब अब आपने ये जैसे कई प्रोडक्ट देखे होंगे कि 5-5 रुपए के नमकीन के पाउच भी आने लग गए, 5-5 रुपए के छोटे पाउच भी आने लग गए जो विलेजेस में चलते हैं और इजीली खरीदे जा सकते हैं। 5 रुपए के बिस्किट पैक भी आने लग गए। वो क्यों करा इनने? तो वो जो उनका ये जो मतलब टारगेट जो परचेजर है कौन है। अब गांव में 5 रुपए आराम से आदमी दे सकता है कोई नमकीन का या बिस्किट के पैकेट का। अब वही पैकेट आप उसको 20 रुपए वाला पैकेट तो मना कर देगा क्योंकि उसकी परचेसिंग कैपेसिटी नहीं। तो वो आपका परचेसर कौन है, तो बाइंग कैपेसिटी और उसकी नीड्स क्या है, ये उसका स्टडी मार्केट सर्वे में बहुत जरूरी है। तो आप उसके हिसाब से अपना पैकिंग तैयार कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं। मार्केट सेचुरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द ऑपरेटिव एरियाज, अगर आपने सर्वे करा और देखा कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट तो आपके रीजन में, आपके एरिया ऑफ ऑपरेशन में सेचुरेटेड है, तो डोंट गो फॉर दैट इंडस्ट्री। फिर आप वो जबरदस्ती कॉम्पीट करोगे, मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसको उस प्रोडक्ट को मत चूज कीजिए। एग्जिस्टिंग रेडी रिसोर्सेज ऑफ डाटा, कुछ रेडी रिसोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे MSME इंस्टीट्यूट आप चले गए तो आपको आपका प्रोडक्ट का आपने प्रोफाइल देखा, प्रोजेक्ट का डिटेल देखा, मशीनरी सप्लायर देखा और प्रोजेक्ट की कैपेसिटी देखी, और उसके बाद फिर आपने देखा कि उसमें रेडी सोर्स ऑफ डाटा भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे किया हुआ रहता है, वो आपको एक हेल्प के लिए मिल सकता है। डायरेक्ट मार्केट रिसर्च बाय सर्वेइंग वायर्स। अब वायर्स आपके कौन कौन है, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के जाते हैं तो आपको जो मेजर फोकस्ड बायर हैं आपके एरिया ऑफ ऑपरेशन में, उनसे जाके उनकी नीड, उनकी डिमांड, उनकी मंथली रिक्वायरमेंट पूछना पड़ेगी, और अभी कौन कौन कितना सप्लाई कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा, उससे कम्पीट करना है आपको, है ना। एक क्वेश्चनियर टू असेस मार्केट पोटेंशियल। अब क्वेश्चनियर तो मेरे को इतना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि क्वेश्चनियर तो अपन बना लेते हैं कि भाई तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, जाके अपन पूछते हैं गाँव में या अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में पूछते हैं। तो क्वेश्चनियर से कुछ चीजें पता चलती है पर मार्केट की डेप्थ पता नहीं लगेगी, पर एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट की ट्रेंड क्या है मार्केट का उस एरिया में। तो ये भी एक मेथड है उसका, मतलब कि क्वेश्चनर ले जाओ, आप कुछ सवाल करो उससे, मतलब जो बायर है, उस परचेसर है, बायर है, उससे सवाल करो, एक क्वेश्चनर बना के ले जाओ। और फोकसिंग ऑन टारगेट ग्रुप। अब आपका फोकस खाली टारगेट ग्रुप पे होना चाहिए। आपका कोई प्रोडक्ट है लेके चले आप और उसका मार्केटिंग करना है, तो एक आप फोकस किसको करोगे, टारगेट ग्रुप को ही करोगे, और आपको कॉम्पीट उसी तरह की दूसरी इंडस्ट्री से कॉम्पीट भी करना है। इन डेप्थ इंटरव्यूज, और इसमें इन डेप्थ में जाके इंटरव्यूज लीजिए कि भाई मेरे प्रोडक्ट की क्या हालत है, क्या हो रहा है,
तो मतलब असेसमेंट पता चलता है मतलब कि मार्केट अपन इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं. इन दिस वे डिमांड एंड पोटेंशियल ऑफ द मार्केट डिसाइड साइज ऑफ द बिजनेस. अब ये अपन ने सारा स्टडी करके अपने को साइज ऑफ द बिजनेस का एक आइडिया लग गया. और ऐसा दुनिया में आइडियल कुछ नहीं होता है कि मैंने एक बार बता दिया कि 3000 मेट्रिक टन का साइज है. ये तो टाइम टू टाइम बढ़ता भी है, घटता भी है, कुछ भी हो सकता है. तो ये आपने कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर फिर भी एक आपको असेसमेंट हो जाता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द बिजनेस, योर प्रोडक्ट एंड बिजनेस. नेक्स्ट, market research and analysis, competitive the things they reveals size of the potential market, strength, weakness, opportunity, threat, window of opportunity always help to enter an uncertain market. अब अपन नए इंडस्ट्री डाल रहे हैं तो मार्केट तो अपना अनसर्टन है, तो अनसर्टन मार्केट की डिमांड को अपन एसेस करते हैं, पता करते हैं कि कितना मतलब डिमांड है, क्या पोटेंशियल है. Guide and target area, remove any barrier or hindrance in a supply chain. और इस तरह से अपन एक सप्लाई चेन बनाते हैं. तो अगर ये स्मूथ हो गई तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी मार्केटिंग में. सप्लाई चेन रहती है, कोई जैसे एक होलसेलर रहता है, एक रिटेलर रहता है, और फिर आपका प्रोडक्ट पहले होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा. और अब तो जो बड़े बड़े प्लेयर आ गए हैं तो वो डायरेक्ट भी हैं, जैसे डी मार्ट हैं, ये दूसरे और भी हैं. ये मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर बीच में, फिर वो होलसेलर और रिटेलर के बीच की कड़ी को तोड़ के और डायरेक्ट कस्टमर को फायदा दिला देते हैं. देते हैं कि नहीं देते, है ना. आप जैसे डायरेक्ट जाते हैं, रिलायंस में जाते हैं, रिलायंस भी यही करता है कि सीधा इंडस्ट्री से ले लिया, आपको दे दिया, बीच में जो होलसेलर और ये जो इसकी जो चेन रहती है रिटेलर की, खत्म कर दी. तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट किसको, उसको भी मिला, अपने को भी मिला. वायर का तो फायदा ही है उसमें. देयरफॉर डिमांड एंड मार्केट पोटेंशियल स्टडी हेल्प्स टू रन इंडस्ट्री स्मूथली. तो डिमांड एंड मार्केट पोटेंशियल आपने देख लिया तो इंडस्ट्री आपकी स्मूथली चलेगी. अब प्रोजेक्ट प्रोफाइल ऑन, अब ये मैंने एक जनरलाइज बनाया है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स and you can have project profile in MSME Development Institute, and you can get a say profile idea कि what is this detailed profile is there. This is a profile, and detailed project report is a different thing. Detailed project report with the technology and feasibility of through CAS is prepared with the fund flow, cash flow and all. Then detailed project report is prepared on the basis of project profile. So project profile tells about quality standard, ISO, ISI, production capacity in numbers, quantity, tons, parameters in all other different parameters are also there for the capacity. In it is in per annum, annual capacity कितनी है. कोई भी प्रोडक्ट जो अपन ने लिया, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट विल बी वन और मोर. इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकेशन, टाइप्स एंड क्वालिटी. प्रोडक्ट का आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वो प्रोफाइल में रहता है. MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जाइए आप, पोलो ग्राउंड में है, वहाँ पे जाके कोई आपको जो ऐसा जो रुचि कर रही है, जो आपके एटीट्यूड के हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट लिया, ऐसा कुछ बनाना है या सर्विसेज हैं कुछ आपकी अच्छी, तो उसकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल यू कैन सी इन द लाइब्रेरी. इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट, स्पेसिफिकेशन, टाइप्स एंड क्वालिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में. देखिए मतलब आजकल फूड पे भी आप देख रहे हैं, एक ग्रीन वाला कलर आता है फूड प्रोडक्ट पे, जिसमें गोल में ऐसा बना रहता है. तो ग्रीन चैनल ट्रिब्यूनल है, तो उसका मतलब है कि वीगन प्रोडक्ट है और इसमें कोई भी मांसाहारी चीज़ नहीं है. तो आप आंख मीच के ले सकते हो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर वो कंपलसरी कर दिया ग्रीन वाला चिन्ह बनाने का. तो जिस भी प्रोडक्ट पे अगर खाने की चीज़ में ग्रीन वाला, ग्रीन ट्रिब्यूनल का मार्किंग है, तो वो आप आंख मीच के खा सकते हो कि इसमें कोई भी अंडा नहीं मिलाया या कोई नॉन वेज, वीगन है, इट्स अ टोटली वीगन आइटम. फिर मार्केट पोटेंशियल में नीड एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग शेल्फ लाइफ. अब लॉन्ग शेल्फ लाइफ का एग्जांपल मैं देता हूँ कि पहले इंदौर का नमकीन बनता था, तो हम लोगों ने मीटिंग्स भी करी थी और ये देखा कि 1 महीने से ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होती थी नमकीन की. प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक करते थे और वो आपने खोला कि उसमें स्मेल आने लगती थी, क्योंकि ऑक्सीडेशन होके और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते थे, तो वो नमकीन रहता नहीं था. फिर हम लोगों ने मीटिंग में उनको सजेस्ट किया कि यू गो फॉर मेटालिक फॉइल पैकिंग विथ नाइट्रोजन गैस अबव एंड जस्ट पैक इट. शेल्फ लाइफ 9 महीने की हो गई. अमेरिका में माल जाता है
यूके में जाता है, यूरोप में जाता है माल, और कहीं भी 9 महीने नमकीन खराब नहीं होता। इंदौर का ही नमकीन खराब नहीं होता है, और इंदौर की नमकीन की क्वालिटी रतलाम की, उज्जैन की, ये मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में तो कहीं नहीं इतनी अच्छी क्वालिटी। तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी हो गई? 9 महीने हो गई, 1 महीने की जगह, बिकॉज ऑफ दी पैकिंग, द मेटालिक फॉइल पैकिंग विद नाइट्रोजन गैस। तो उसमें क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, और इनर्ट गैस होने से उसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और प्रोडक्ट ऐसा कैसे ही रहता है। खोलने के बाद जरूर उसको 1 वीक में खाना चाहिए फिर, मतलब। नेक्स्ट, अब इसमें प्रोजेक्ट प्रोफाइल में अपन बेसिस एंड अजम्पशंस लेते हैं, रेट, क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फिर मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फ्रॉम 1 to 5, है ना, 1 to द सैलरी, फिर उसके बाद ये एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब द सैलरी, वेजेस, ये कॉस्ट लॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज, रेंट एक्सेट्रा, है ना, और फिर ब्रेक इवन पॉइंट एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इस तरह से अपनी ये प्रोजेक्ट प्रोफाइल पूरी तैयार होती है, और इसमें उन लोगों ने सुविधा के लिए, एमएसएमई वालों ने मशीनरी सप्लायर की लिस्ट, रॉ मटेरियल सप्लायर की लिस्ट भी दी हुई है, ताकि आपको इजीली उनसे कांटेक्ट करके यू कैन गो फॉर ए बेटर मशीनरी इन प्रोडक्शन, एंड यू कैन प्रोक्योर योर रॉ मटेरियल वेरी इजीली। नेक्स्ट लीजिए। टेक्नोलॉजीज आर मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ। टेक्नोलॉजीज टर्न की बेसिस पे भी मिलती है, तो टर्न की बेसिस पे कोई प्रोजेक्ट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये करना चाहिए, तो कंसल्टेंट्स रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं इस फील्ड में, और जैसे मध्य प्रदेश कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, एमपी कौन बोलते हैं अपन इंदौर, एमपी में, ऐसे ही गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो वो कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली आपको वो पूरा टेक्निकल कंसल्टेंसी देते हैं, वो टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करते हैं, उसका ऑफिशियल फीस चार्ज करते हैं, और फिर आपको हैंड ओवर करते हैं टर्न की प्रोजेक्ट पूरा, कि ये मशीन लगा के आपको चाबी दे दी, अब आप उत्पादन प्रोडक्शन चालू कर दीजिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम, मोटिव पावर रिक्वायर्ड इन हार्स पावर किलोवाट एम्पियर, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल, फाइनेंशियल आउटले, लैंड, अब फाइनेंशियल आउटले को ब्रेकअप किया है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, अदर फिक्स्ड असेट्स। अदर फिक्स्ड असेट है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, और भी जो आपके ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल है, और जो भी इंडस्ट्री में जो भी साथ की चीजें हैं, जो कि मोबाइल टाइप की है, मूविंग चीजें हैं, तो वो भी ये फाइनेंशियल आउटले में कंसिडर की जाती। नेक्स्ट। वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट जो है वो इस तरह से किया जाता है कि ए फॉर स्टाफ एंड लेबर, स्टाफ एंड लेबर मंथली कितना लगता है, फिर क्वार्टरली कितना लगता है, और एनुअल कितना लगता है। तो कई इंडस्ट्री सीजनल होती हैं, 4 महीने ही चलती है, जैसे दाल मिल है, दाल मिल 4 महीने 5 महीने चलती है, 6 महीने चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती, 6 महीने वो बैठे ही रहते हैं फिर, मतलब। तो वो उनका फिर स्टाफ एंड लेबर का जो 6 महीने का पूरा एनम का स्टाफ एंड लेबर का कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि वो लेबर को खाली तो बिठा नहीं सकते, तो उसको वो 6 महीने की मतलब बुलाते हैं, और उसको फिर दूसरे काम करा के सैलरी तो देना पड़ती है ना उनको, वो नहीं तो पीएफ ESIC वाले परेशान कर देंगे उनको। तो वो तो बहुत जरूरी है। स्टाफ एंड लेबर का कैलकुलेशन सीजनल इंडस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट रहेगा, पर रेगुलर जो 12 महीने चलती है उस इंडस्ट्री के लिए आप मंथली, क्वार्टरली और 12 महीने का असेसमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल एंड स्पेयर पार्ट्स, जैसे कुछ असेंबलिंग जॉब वर्क की इंडस्ट्री रहती है, उसमें स्पेयर पार्ट्स होते हैं, असेंबलिंग किया जाता है, वो भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। और फिर कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज रहती हैं जिसमें कि सर्विसेज दी जाती हैं, तो वो भी, और रॉ मटेरियल तो प्रोडक्शन में लगेगा, केवल कुछ प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री है तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। फिर यूटिलिटीज पर मंथ, यूटिलिटीज क्या क्या होती हैं बताएंगे क्या, कोई बताएं? मतलब ये इंटरेक्टिव सेशन है, मेरे को भी बताओ ना, मुझे नहीं मालूम है बहुत सारी चीजें। यूटिलिटीज क्या होती है बताइए, कोई बताएगा? यूटिलिटीज क्या होती है बताइए ना इंडस्ट्री में। अरे इलेक्ट्रिसिटी है, फिर टेलीफोन है, ये क्या यूटिलिटीज नहीं है क्या? तो फिर बोलिए ना, एक हाथ कोई खड़े तो के बताइए यूटिलिटीज क्या क्या होती है, और क्या हो सकता है बताइए ना।
लेबर यूटिलिटी में नहीं आएगा। यूटिलिटी अपन जो यूज कर रहे हैं, जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसकी कोई हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जो भी व्हाट्सएवर में भी ये स्टेशनरी मंगा रहे हैं, ये मंगा रहे हैं, तो वो यूटिलिटीज में आ जाएगा। और बताइए क्या हो सकता है, बताओ। रिपेयर मेंटेनेंस भी यूटिलिटीज में आ सकता है, क्योंकि अपन जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिपेयर करा रहे हैं, मेंटेन करा रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो वो दैट इज ऑल्सो एन सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी। वाटर सप्लाई यूटिलिटी है, बिल्कुल है। गैस यूटिलिटी है, बिल्कुल है। जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं, दोज आर ऑल आर यूटिलिटीज। अदर कॉन्टिजेंट एक्सपेंसेस पर मंथ, और दूसरे कॉन्टिजेंट एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। मतलब कई बार इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई मतलब काम करने वाले मजदूर को चोट लग गई, उसको हॉस्पिटल ले गए, ये ले गए, कॉन्टिजेंट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो आते हैं उसको कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर। और टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? फिक्स कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल फॉर 3 मंथ्स। दिस इज फार्मूला ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये फार्मूला है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कैसा कंसिडर करते हैं? फिक्स कैपिटल मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्स कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल फॉर 3 मंथ्स। नेक्स्ट। हाँ, वर्किंग कैपिटल में सब पार्ट लिया था ना अपन, रॉ मटेरियल, फिर वेजेस, और फिर उसके बाद यूटिलिटीज। मंथली निकाल के उसमें 3 का गुणा करना, 3 मंथ्स हो जाएगा। और अगर 12 का करेंगे तो पर एनम हो जाएगा। सिंपल है ना। फाइनेंशियल एनालिसिस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल रिकरिंग एक्सपेंसेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। डिप्रेसिएशन ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट 15% पर एनम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब सीएस भी यही करते हैं, जो गवर्नमेंट करती है वही करते हैं कि डिप्रेसिएशन ऑन मशीनरी इक्विपमेंट, हर साल डिप्रेसिएशन होगा कि नहीं मशीन में, वो 15% लेते। पुराने जमाने में 10% लेते थे, आजकल 15 लेते हैं वो। फिर डिप्रेसिएशन ऑन टूल एंड फिक्सचर्स 25% लेते हैं, कि इसमें मेंटेनेंस ज्यादा होता है। टूल्स में टूट फूट हो जाती है, गुम जाते हैं, कोई ले जाता है, ऐसा भी हो जाता है, तो टूल्स को डिप्रेसिएशन 25% लेते हैं। फिर डिप्रेसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 20% लेते हैं, क्योंकि ऑफिस फर्नीचर भी कुछ डिजाइन चेंज करना, कभी अच्छा नहीं लग रहा है तो बोले ऐसी चेयर रखेंगे, ऐसा वो करेंगे, तो वो 20% पर एनम लेते हैं उसको। फिर इंटरेस्ट ऑन टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 15% लेते हैं। 15% का इंटरेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक से लोन लिया, तो 15% एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट अपन नॉर्म लेके चलते हैं। ये एमएसएमई का फॉर्मूला है। नेक्स्ट। अब ये प्रोजेक्ट प्रोफाइल, हाँ, अब ये प्रोजेक्ट प्रोफाइल का 15 नंबर का टर्नओवर पर ईयर 12 मंथ्स का, तो प्रोडक्ट क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, ये टर्नओवर 12 महीने का निकलेगा हमेशा। और अगर आपको 1 महीने का निकालना है तो उससे 12 से भाग दे दीजिए। प्रॉफिट ऑफ 12 मंथ्स बिफोर टैक्सेस इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स पर 12 मंथ्स, है ना, वो टर्नओवर हो गया, टर्नओवर पर ईयर आ गया। अच्छा, फिर रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट अब्लिक टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये आपका रेट ऑफ रिटर्न आ गया। फिर फिक्स कॉस्ट में क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एनम प्लस 40% ऑफ सैलरी वेजेस प्लस 40% ऑफ अदर कॉन्टिजेंट एक्सपेंसेस, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एनम आया। फिर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बताएंगे कोई? जहां पे जाके नो प्रॉफिट नो लॉस पे इंडस्ट्री आती है, दैट पॉइंट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। जहां आपने कोई वेंचर चालू किया, मार्केट किया, मार्केट और आपका जो एक्सपेंसेस है जब जीरो हो जाता है तो दैट इज ए ब्रेक इवन पॉइंट। और फिर उससे ज्यादा ही होना चाहिए, मार्केट ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट ये आता है फिक्स्ड कॉस्ट इंटू 100 अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जनरली 40 to 50% होता है तो अच्छा रहता है। तो 0% होगा तो फिर कोई काम मतलब ही नहीं बिजनेस करने का। 40 to 45% अगर रहा तो अभी तो प्रॉफिट अर्निंग होगा, नहीं तो प्रॉफिट का बिजनेस इंडस्ट्री काय के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना अपन तो। अब इसके बाद ये लिस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट सप्लायर्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट सप्लायर्स और रॉ मटेरियल सप्लायर्स का भी एमएसएमई की प्रोजेक्ट प्रोफाइल में आपको गाइडेंस मिल जाता है। पर उस पर पूरा रिलाय मत कीजिए, आप अपने सोर्सेज भी, रिसोर्सेज से भी ढूंढिए, प्राइवेट कंसल्टेंट से भी बात करिए, वो ये आपके तो सब ऑप्शंस ओपन है। अब बिजनेस प्लान,
व्हाट इज बिजनेस प्लान, है ना? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए राइट बिजनेस प्लान इज लाइक ए कॉन्टेस्ट. कोई कॉन्टेस्ट होती क्या आपकी? कोई कॉन्टेस्ट कहीं नहीं होती, कोई प्रतियोगिता नहीं होती, कुछ मतलब वो मिलता नहीं है आपको, प्राइज वाइज नहीं मिलता है. जैसे बिजनेस प्लान इज लाइक ए कॉन्टेस्ट, है ना, विच एनालाइज गोल्स एंड टारगेट स्पेसिफिकली अचीव ए ग्रोथ इन टाइम. ग्रोथ भी अचीव कर ली तो कोई 10 साल में करी तो कोई फायदा थोड़ी है. इन टाइम, भाई आपका एक वो गेस्टेशन पीरियड है 6 महीने का, और अगर 1 साल में आपने ग्रोथ अचीव करी तो अचीव करी, नहीं तो 10 साल में करी तो क्या काम की वो, है ना? प्लानिंग इज रिव्यूएबल प्रोसेस. तो प्लानिंग क्या है? हमेशा कंटिन्यूसली अपने आप साइकिल दी तो रिव्यू करते ही रहना पड़ेगा. आज वीकली करो, मंथली करो, एनुअल क्वार्टरली करो, एनुअल करो. रिव्यू तो आपको जो भी आपने एग्जीक्यूट करा ऑर्गेनाइज करके, वो रिव्यू तो बार बार करना ही है उसका, नहीं तो आपको असेसमेंट क्या होगा, है ना? प्लानिंग इज ए रिव्यूएबल प्रोसेस. प्लानिंग हैज एजेंडा बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल फैक्टर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ ए एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशन. क्रिटिकल फैक्टर्स तभी तो पता पड़ेंगे अपने को एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशन के, कि अपन ने अगर ये प्रोजेक्ट चुना है तो उसमें क्या क्या क्रिटिकल चीजें. भाई सब अच्छा थोड़ी मिलेगा यार आपको, उसमें तो बहुत कई दुखड़े आएंगे, कई परेशानी आएंगी. मतलब बिजनेस प्लान इज एट ए ग्लांस है प्रोजेक्ट प्रोफाइल. अभी अपन ने प्रोजेक्ट प्रोफाइल स्टडी किया था, तो बिजनेस प्लान भी क्या है, इट्स ए मतलब एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल का ही रूप है, मतलब, है ना? 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्लान्स आर देयर. अंडरगॉन इन डेप्थ एनालिसिस, जहां अपन डेप्थ एनालिसिस में गए हैं, रियलिस्टिक प्लान स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, और टेक्निकली फिजिबल एंड इकोनॉमिकल वाइबल. अब टेक्निकल फिजिबल लिखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या होगा बताओ इसमें क्या होता है? टेक्निकल फिजिबल मीन्स व्हाट? मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट प्रोफाइल आप ले आए मेरे पास, व्हाट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी? जस्ट टेल मी वन ऑफ यू, व्हाट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी? द machine decides the capacity of utilization and cost should be minimized, then it is the machine is technical feasible. नहीं तो मशीन निकाले जा रही है और कॉस्ट बढ़े जा रही है तो मतलब ही नहीं. अब पुराने टाइप की घटिया मशीनों से आप कोई काम करोगे तो आपको क्या कॉस्ट कितनी बैठेगी? मैं उदाहरण देता हूँ, जावरा शुगर मिल थी, वहाँ पे कर्मचारी अपने कारपोरेशन के लगे हुए थे, और वो लंकाशायर के टाइप के बॉयलर और क्रशर और वशर, और उस समय मैं इंस्पेक्शन पे गया था तब 12.5 रुपये किलो शक्कर मिल रही थी बाजार में, और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी 20 रुपये. तो वो यूनिट चलती क्या? बंद हो गई ना वो शुगर मिल. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 20 रुपये आ रही है और बाजार में 12.5 रुपये किलो शक्कर बिक रही है, तो वो यूनिट चलेगी क्या? क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई थी, खराब हो गई थी, तो यूनिट बंद हो गई वो. फिर सेकंड है रियलिस्टिक प्लान स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, वो टेक्निकल फिजिबल एंड इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल वाइबल क्या होता है? अच्छा बताइए, इकोनॉमिकल वाइबल कैसा होगा प्रोजेक्ट? तो दिखने में शब्द अच्छा लग रहा है, क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल वाइबल. इकोनॉमी, इन्वायरमेंट वाइबल नहीं बोल रहा हूं, इकोनॉमिकल वाइबल. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम आएगी, मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो ही तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो कहां से मिलेगा? नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट. अब ये जैसे अपन ने वो एक कोई भी एक्टिविटी का प्लान, वो साइकिल देखा था, ऐसे ही देयर इज ए साइकिल फॉर बिजनेस प्लान. विजन, गोल एंड स्ट्रेटेजी. विजन में ये क्लियर कट विजन होना चाहिए कोई भी बिजनेस में, गोल्स क्लियर होना चाहिए और स्ट्रेटेजी क्लियर होना चाहिए. तो फिर उसके बाद क्या है? ऑपरेटिव टेक्टिसेस. ऑपरेटिव टेक्टिसेस में क्या हो सकता है बताइए? बिजनेस प्लान में ऑपरेटिव टेक्टिसेस क्या होंगी? मतलब आपने टेक्निकल स्टाफ ठीक से रखा है, स्किल्ड वर्कर है, ये सब क्या है? कौन सी टेक्टिसेस हैं? ऑपरेटिव टेक्टिसेस. नहीं तो आपका ऑपरेशन मशीन का सही होगा क्या? नहीं होगा. थर्ड इज इन डेप्थ एनालिसिस. अब ये करने के बाद में अपने इन डेप्थ एनालिसिस करा कि नहीं, कि प्रोडक्ट में कुछ वेस्टेज आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं आ रही है, तो ये बार बार आपको उसका क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेस कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना? कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं कि छोड़ दोगे मशीन के भरोसे. क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोसेस कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल, ये दोनों बहुत अत्यंत आवश्यक वस्तु है. और देन यू रिव्यू फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, जो आपके जो रिकॉर्ड आए, जो प्रोडक्शन रिकॉर्ड है,
जो प्रोसेस रिकॉर्ड है उससे फिर आप रिव्यू करोगे और अपने मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में प्रेजेंटेशन करोगे और देखोगे कि मतलब क्या स्थिति बनी है अपनी, और फिर बाद में वही फिर साइकिल चालू आपकी प्लान, बिजनेस प्लान की, इन ए विजन, गोल एंड स्ट्रेटेजी, ऐसे हुए साइकिल, इट विल बी कंटिन्यूस साइकिल. Government of India MSME guideline for making a project profile and a detailed project report can be updated as per available resource, facts and no assumption work in business plan. यहाँ बिजनेस प्लान में कोई एजम्पशन वर्क नहीं चलता है कि अपन ने कॉपी में कुछ लिख लिया और ऐसा प्रोडक्शन हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, नहीं. ये बिल्कुल यथार्थ रहता है, जो भी रहता है ना. इसमें कोई मतलब गपबाजी नहीं चलती, कोई गप लगा दी, कोई ये लगा दी, ऐसा नहीं होता. कोई एजम्पशन नहीं चलेगा, है ना. Assignment of a good technical and economic team, engineers, CAs, etc. help in adopting technology, finance and marketing as per current fashion and trends. Current fashion and trends की बहुत जरूरत है, और मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट का आज बहुत बड़ा हिस्सा है. देखो आप, है ना, गोवर्धन घी के लिए अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. गाय के गोवर्धन घी के लिए अमिताभ बच्चन खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. बोलो आप, विकास जी का नमकीन बता रहे हैं अमिताभ बच्चन. तो अब ये ब्रांड वैल्यू पे, मतलब ये मार्केटिंग के कितनी स्टाइल नए नई आ गए, फैशन, डिजाइन सब आ गए हैं. मतलब वो ट्रेंड सब मतलब मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब ये ब्रांडेड पहनना, ये पहनना, और वो खाने की चीजों में भी ब्रांड्स आ गए हैं. अब ये सब थोड़ा चेंज हो गया मार्केटिंग. हमारे टाइम का मार्केटिंग अलग था. मतलब रिव्यूइंग पीरियडिकली हेल्प्स टू इंप्रूव द ग्रोथ. ए सिंपल प्लान with well defined approach is always a good plan. Plan should be very simple. कोई complicated plan नहीं बनाना है. अपने को ABCD क्लियर देखना है कि अपन कहाँ जा रहे हैं. जबरदस्ती उसमें कोई नक्काशी नहीं करना है कि मतलब ऐसा सुंदर प्लान बनाऊंगा, ये फेयर वर्क करूंगा, ऐसा कुछ नहीं. सब फेयर ही रहता है जो बनाते हैं अपन, उसको आगे प्रोग्रेस करने के चांस रहते हैं. डायमेंशन टू एनालाइज ए बिजनेस प्लान. चेक नीड, वांट्स एंड बाइंग बिहेवियर ऑफ द एंड यूजर कस्टमर. अब जो अगर आपने कोई एक चीज बना ली, एक प्रोडक्ट बना लिया, तो उसका बायर की नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, मतलब उसकी कैपेसिटी भी है कि नहीं आपके प्रोडक्ट खरीदने की. नहीं तो आपने बहुत ऊंची क्वालिटी का और बहुत महंगा प्रोडक्ट बना लिया, और फिर पता चला कि वो आपका जो यूजर या कंज्यूमर है वो तो उसको ग्रास्प भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो उसको आप सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं उस प्रोडक्ट को, है ना. फैशन ट्रेंड्स, ड्राइव्स and segments decide market size and growth. Competition, direct, indirect, in same future companies and products. Pastel में political, economical, social, environmental and legal environment may be considered before. ये बहुत जरूरी है पेस्टल. ये इसका एनालिसिस, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है. कभी इंडस्ट्री आप डालने जा रहे हो कि पॉलिटिकल सिचुएशन इसी से, वो कार का आया था, टाटा ने कार डालने गए थे बंगाल में, मना कर दिया उनने. बंगाल में टाटा बोले नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं थी. तो टाटा वाले ने नैनो कार कहाँ ले गए, गुजरात में चले गए बाद में. फिर वैसे ही इकोनॉमिकल पोजीशन कहाँ है जहाँ पे इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं. फिर उसकी सोशल एंड एनवायरमेंटल एंड लीगल स्टेटस क्या है, वो सब कंसिडर करके ही इंडस्ट्री उस जगह पे डालना चाहिए. नहीं तो अपन ने, गवर्नमेंट ने कोई बोले एक बैकवर्ड नोटिफाइड एरिया कर दिया और अपन ने जाके और 200 किलोमीटर, इंदौर से 200 किलोमीटर दूर जाके इंडस्ट्री डाल रहे हैं और रोज परेशान हो रहे हैं. क्या मतलब फिर उससे. इंटरनल परफॉर्मेंस, HR, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फाइनेंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ब्रांड, एग्रीमेंट्स शुड बी हैंडल्ड पॉजिटिवली. ये चीजें बहुत पॉजिटिवली हैंडल करना पड़ेंगी. ये कोई लेजर नहीं अपना कि आराम से अपन सब कर लो, ऐसा नहीं है. इसमें तो वही 24 घंटे 7 दिन लगे रहो. मतलब फिर SWOT एनालिसिस यहाँ भी आ रहा है. SWOT इन स्ट्रेंथ, थ्रेट, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस शुड बी हैंडल्ड वेल. इट शुड बी हैंडल्ड वेल हियर आल्सो. वो हर फील्ड में आएगा SWOT. तो मतलब कोई भी एक्टिविटी करोगे SWOT एनालिसिस विल बी देयर. MSME कॉमन मिस्टेक्स इन द प्लान. MSME क्या बताती है, क्या क्या मिस्टेक्स होती है प्लान में. आपके प्लान कब गड़बड़ होता है कि रॉन्गली डिफाइंड मार्केट, ओवर एम्बिशियस. बोले मैं तो 4000 प्रोडक्ट बेच दूंगा, कैपेसिटी हमारी है ही नहीं, बोले 4000 बेच दूंगा, और ओवर एम्बिशियस प्लान बना लिया, तो रॉन्ग है, वो गलत है ना. तो रॉन्गली डिफाइंड मार्केट को डिफाइंड कैसे करो, प्रॉपर सर्वे के बाद रियलिस्टिक होना चाहिए.
कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर इज इग्नोर्ड। अब कस्टमर का क्या खरीदना है और अपन कस्टमर को इग्नोर ही कर दें तो आपका प्रोडक्ट कोई चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज टू शेलो। अब अपन ने बहुत ही इजीली बोले पेपर पे ही सब बना ली इंडस्ट्री, तो ऐसे पेपर पे इंडस्ट्री नहीं चलती है। चैनल्स एंड कंस्टेंट्स आर इग्नोर्ड। अब किस चैनल से मार्केटिंग करेंगे और क्या क्या दिक्कतें कठिनाइयाँ आएंगी, कंस्टेंट्स आएंगी, ये आपको लेके चलना पड़ेगा मार्केटिंग में, नहीं तो आप फिर कोई भी उसका प्लान आपका मतलब एमएसएमई का सक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट, एमएसएमई गाइडलाइंस फॉर ए गुड बिजनेस। अब गुड बिजनेस की क्या गाइडलाइन होना चाहिए? तो पहले लिमिट स्कोप ऑफ बिजनेस, मार्केट, प्रोडक्शन एंड कंपनी स्टेटस। ये अपनी चीजों को लिमिट कर लो, आप कोई अनलिमिटेड नहीं हो। मतलब कंपनी भी, बड़ी कंपनियां भी लिमिटेड रहती हैं, प्राइवेट लिमिटेड रहती है, वो भी उनकी भी एक लिमिट है। मतलब वो चाहे जितना प्ले नहीं कर सकती कुछ भी। तो इसमें क्या है कि लिमिट स्कोप ऑफ बिजनेस, मार्केट, प्रोडक्शन एंड कंपनी स्टेटस। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स। आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस तरह की ऑलरेडी जो यूनिट चल रही है उसकी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं तो अपन पता ही नहीं है कि वो अपना वो बेचे जा रहा है ना, हमसे बिक ही नहीं रहा है, फिर ऐसा होगा ना। मतलब फिर एनालाइज स्वॉट इन टोटल में स्वॉट एनालिसिस एंड रिव्यू। फिर यहाँ पर सब एक्टिविटी में स्वॉट एनालिसिस आ गया है, मतलब और रिव्यू आ गया। रिव्यू मैनेजरियल एंड थर्ड पार्टी फीडबैक्स। मैनेजर अपने मैनेजमेंट से भी रिव्यू लो, नीचे से लो रिव्यू, क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्शन में क्या दिक्कत आ रही है, सब रिव्यू बहुत जरूरी है। और फिर थर्ड पार्टी फीडबैक भी लो। हमने किसी को माल दे दिया तो उससे भी पूछो भी, जो तूने जो दुकानदार ने माल लिया तो क्या तेरा रिव्यू, तेरा फीडबैक क्या है प्रोडक्ट के लिए। तो ये बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। नेक्स्ट ले लीजिए। बोर तो नहीं हो रहा आपको एक तरफा ऐसा? नहीं तो वो वन साइड चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? आप भी थोड़ा इंटरेक्टिव, थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए ना थोड़ा सा। नहीं ये तो हो गया इसका। नेक्स्ट, नहीं ये तो हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगा दीजिए। नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगा दीजिए। ये भी हो गया है। एफएम लगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी हो गया है। ये मिस्टेक्स का भी थोड़ा वी कम फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग, सिलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फंड्स। फंड्स को मैनेज करना है अपने को। और फंड्स कितने टाइप के होते हैं? तब कॉमर्स के ही है ना आप तो। फंड्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ फंड्स तो बताइए ना मुझे। हाँ, लोन्स भी फंड है क्या? नहीं है? हाँ, वो कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, और हाँ ठीक है। तो फंड्स के मैनेजमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फिर अलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ फंड, उसकी साइकिल ऐसे चलती है। फिर एस्टिमेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। आपकी जो फिक्स कैपिटल है उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। मतलब क्योंकि फिक्स कैपिटल भी क्या होता है कि उसका भी डिप्रेसिएशन होता है। आपने एक बिल्डिंग बनाई तो क्या वो 20 साल चलेगी 20 साल, पर आपका डिप्रेसिएशन कॉस्ट तो उसको लेना पड़ेगी। आपको हर साल डिप्रेसिएट होगी 10% से या 5% से। अभी आजकल 10% हो गया, पहले 5% लेते थे। अब फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस इन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। जैसे वर्कर्स को बोनस बांटना है, अगर टाइम से आपने नहीं बांटा तो हड़ताल कर देंगे। या फिर शेयर होल्डर को टाइमली पैसा नहीं दिया तो शेयर होल्डर आपके शेयर लेना बंद कर देंगे कंपनी के। तो ये टाइम में अगर नहीं दिया आपने, आपका जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस इन टाइम, अगर इन टाइम नहीं दिया तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन गड़बड़।
रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर ये रिपोर्टिंग करके रिव्यू हो गया और फिर यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट ले लेना। अब व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट इज मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोटेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड सरप्लस इन टाइम, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये पांच चीजें, छह चीजें जो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग टू रेज फंड्स। फंड्स कब रेज करते हैं अपन बताएंगे कोई? अब तो सब कॉमर्स वाले बताएं फंड्स कब रेज किए जाते हैं। कंपनी कोई फंड्स कब रेज करती है? कैपिटल के लिए रेज करती है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन्स भी ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है। पर अगर लोन अवॉइड करना तो लिमिटेड कंपनियां फिर क्या करती है? शेयर्स निकालती है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग टू रेज फंड्स, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अगर डिले जरा भी हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो फैक्ट्री की, जो इंडस्ट्री की साइकिल गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट is vital for running business or organization. It leads a pathway to achieve goals and targets of a project. Goals and target of the project क्या होते हैं? Goals क्या रहते हैं? कोई फुटबॉल का गोल है क्या? फिर क्या होता है? गोल्स क्या होते हैं? हाँ, ओ टारगेट्स क्या होते हैं? टारगेट्स समझो मैं 5 प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरे एनुअल टारगेट ये रहेगा, इतने बनाऊंगा। कुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मशीन का 80% मतलब स्टैंडर्ड माना जाता है। 100% कोई मशीन चलती नहीं, कभी लाइट जाती है, कुछ होता है। उसका फॉर्मूला क्या है? 80% यूटिलाइजेशन पे अपन असेस करते हैं। ए सॉलिड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनेबल्स CEO or public manager to provide data for long range vision, informs decisions about investment, yield, insight, liquidity, profitability and a cash runway। इस तरह से वो मैनेज करते हैं फाइनेंस को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब होता है? मैंने जैसे बताया कि एक स्टैंडर्ड MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि 80% कैपेसिटी पे मशीन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब उसमें आप 3 शिफ्ट में चला रहे हो और वर्कर्स को कैसा मैनेज कर रहे हो, ये आपके ऊपर रहता है। फिर ट्रैकिंग लिक्विडिटी, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो क्या होते हैं बताएंगे भाई? कैश फ्लो और फंड फ्लो क्या होते हैं? हाँ, कंटिजेंसी में। हाँ, वो फंड फ्लो क्या होता है? अपने को जो डाइवर्सिफिकेशन करना है, कोई एक्टिविटी एक्सपेंशन करना है, तो फिर फंड फ्लो होगा कि नहीं? अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? वो दूसरी बिल्डिंग में जाएगा, या फिर एक और मशीनरी लगा ली तो मशीनरी में जाएगा। दैट इज अ फंड फ्लो। ensuring in compliance of liabilities of state and federal regulations, taxes and cess, developing a financial scenario, current status and forecast, assuming a wide range of outcomes based on possible market condition. Market condition is most important. भाई अपन ने मार्केट सर्वे इसीलिए करा है कि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन अपनी मतलब 80% प्रोडक्शन या 60 भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन हम मार्केट के साइज के हिसाब से कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिविडेंड डिसीजंस। डिसीजंस अबाउट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड इनटू डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स, bonus, etc. Retained profit is to be utilized in expansion, diversification of the project. Retained profit is to be utilized in expansion or diversification of the product. अब ये अपन ने शेयर दे दी है, फिर बोनस दे दिया और फिर भी अपने पास सरप्लस बचा है, तो अपन क्या करेंगे? अपनी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, एक दो नए प्रोडक्ट्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन में वही प्रोडक्ट में एक और मशीन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सप्लाई ऑफ फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि जब भी किसी ने मेरे समझो प्लांट वाले ने या कोई प्रोसेस कंट्रोल वाले ने एकदम कुछ पैसा मांगा है इमीडिएटली और आपके पास रिक्वेस्ट भेजी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या कर्तव्य है कि वो सप्लाई ऑफ फंड जब रिक्वायर्ड हुआ तो उसको तुरंत असेस करके और अपने अकाउंट सेक्शन में पूछ के और उसको तुरंत उपलब्ध कराए, या जो भी कंपनी को पेमेंट करना पेमेंट कराए। टाइमली रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को अगर टाइमली रिटर्न नहीं किया तो आपके आगे शेयर चलना नहीं है, मार्केट में बिकना नहीं है।
है ना, स्टॉक एक्सचेंज में आपको रेपुटेशन खराब होनी है। ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज। सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। फिर मेंटेन्स डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? जैसे लोन ले लिया किसी इंडस्ट्री ने और इक्विटी है उसकी, और डेब्ट मतलब लोन ले लिया, और इक्विटी क्या रहती है? इक्विटी क्या होती है? हाँ, तो उसका एक रेशियो मेंटेन होना चाहिए। तो हाँ, अलोकेशन ऑफ फंड्स इन एक्टिविटीज सो एज टू अर्न रेगुलर रिटर्न्स। अब अपन काय के लिए कर रहे हैं फंड्स? रेगुलर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो क्या मतलब है? ऐसी इंडस्ट्री चलाने से क्या मतलब? रिटर्न ही नहीं मिलेंगे तो, है ना। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस क्विकली इन लाइबिलिटीज। अपनी जो लाइबिलिटीज है वो बहुत क्विकली करना चाहिए। इलेक्ट्रिक का बिल टाइम से नहीं भरा तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, सेल्स टैक्स का पैसा नहीं भरा टाइम से, जीएसटी का तो पैसे पेनल्टी लग जाएगी, फिर इंस्पेक्टर आपके यहाँ घूमेंगे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर का पैसा नहीं भरा तो वो आएगा, 15 तरह के इंस्पेक्टर आएंगे आपके यहाँ। तो लाइबिलिटीज को क्विकली डिस्पोज करना जरूरी। रेशियो एनालिसिस हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए यूनिट। नेक्स्ट, अब रोल ऑफ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। इट कंट्रोल्स द फेयर मीन्स इन प्रोसेसिंग जॉब वर्क और प्रोडक्शन इन ए बिजनेस वेंचर। फेयर मीन्स से ही ये कंट्रोल होते हैं। अगर ये नहीं होते तो फिर आदमी कुछ भी, कितनी बिजली जलाता, कुछ भी यूनिट आता और कुछ भी टैक्स भरता। ये फेयर मीन्स अगर यूज नहीं करते, असेसमेंट के क्वार्टरली नहीं होते हैं, तो ये मनमानी करते। फिर इनको कोई मतलब लाइबिलिटी नहीं है क्या? इसकी टैक्स लाइबिलिटी है या और कोई भी लाइबिलिटी? या फैक्ट्री इंस्पेक्टर के जो इंस्पेक्शन क्यों होते हैं, या ड्रग कंट्रोलर के इंस्पेक्शन क्यों होते हैं? टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये पहला है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेगुलेटरी अथॉरिटीज में। दूसरा है इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी। भाई आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से, जैसा आपका बॉयलर की एक हमने डेट दे दी, इस डेट तक बॉयलर की वैलिडिटी है, उसके बाद भी आप बॉयलर चलाए जा रहे हो और बॉयलर फट गया तो कौन जिम्मेदार? तो ये खुद इंडस्ट्री जिम्मेदार है। वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर तो कह गया था कि ये इसकी डेट, इस डेट को आप ये बॉयलर चेंज कर दो, और नहीं करा तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर की गलती नहीं है, उसकी किसकी गलती है? इंडस्ट्रीज की गलती। अब फूड एंड ड्रग कंट्रोलर, अब जैसे कोई फूड इंडस्ट्रीज रहती है तो फूड एंड ड्रग कंट्रोलर के पूरे मध्य प्रदेश में नहीं घूम सकता। भोपाल में ऑफिस है उसका, ज्यादा से ज्यादा फार्मास्यूटिकल यूनिट में घूम सकता है और मेडिकल स्टोरों की जांच कर सकता है। पर वो फूड में फिर ये नगर पालिकाओं को हैंड ओवर कर देते हैं, नगर जो लोकल बॉडीज को। तो नगर पालिकाओं में एक फूड इंस्पेक्टर नाम सुना होगा आपने, तो उसको वो पावर सब डेलीगेट करता है। कौन सा? फूड एंड ड्रग कंट्रोलर। फूड कंट्रोलर भी है, ड्रग कंट्रोलर मध्य प्रदेश का हो, तो इनको पावर डेलीगेट करता है कि आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो कि नहीं। तो आपने सुना पड़ा किसी के रेड पड़ गई और घी ऐसा निकला और वो ये निकला, फिर कौन करता है? नगर निगम करता है। रिपोर्ट किसको करता है? फूड एंड ड्रग कंट्रोलर मध्य प्रदेश। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत जरूरी है। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के लिए एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से परमिशन लेना पड़ती है। फिर ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई अपने यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में अपने यहाँ नहीं है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी टाइमली इसकी लाइबिलिटी फुलफिल करना बहुत जरूरी है। एंट्री टैक्स, टोल पोस्ट पे जो एंट्री टैक्स है उसमें फिर कुछ नई एंटरप्राइजेज है, स्टार्टअप है, नई इंडस्ट्री है, इनके लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव, कुछ कंसेशन एंड फैसिलिटीज दिए हुए हैं, वो भी आप यूनिट अवेल कर सकते हैं। फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपने मार्क पढ़ा होगा, FSSAI प्रोडक्ट, ऐसा देखा होगा कोई प्रोडक्ट पे। ये क्या है? फूड का स्टैंडर्ड क्वालिटी फूड है, इसकी गारंटी है। ये FSSAI देखा होगा, फूड प्रोडक्ट पे देखा होगा क्या? आजकल बहुत प्रचलन में है। क्वालिटी मार्किंग एंड ऑब्टेनिंग सेट स्टैंडर्ड्स लाइक ISO, ISI, IP, BP, FSSAI एक्सेट्रा। तो वो उनकी मार्किंग को, फिर मैंने एक आपको ग्रीन चैनल वाला बताया था, ये हरा सा टिपका लगा रहता है, तो वीगन प्रोडक्ट है, ये कंफर्म करता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव रहता है, मतलब वो जिसने भी लगाया है तो उसका लाइसेंस रहता है, वही लगा सकता है कि जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट बेच रहा है, तो अपन कॉन्फिडेंस से वो प्रोडक्ट वेजिटेरियन करके खा सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के रोल क्या है? एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी, सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ
for obtaining a standard quality product, or protection and safety is must. अब some national regulatory agencies are there, SEBI, the Security Exchange Board of India, ये शेयर्स के लिए SEBI होती है, जो आपके मुंबई में इसका ऑफिस देखा ही होगा आप लोगों ने शायद मुंबई में। फिर इसके बाद नाबार्ड होता है। नाबार्ड नाम सुना है किसी ने? नाबार्ड क्या होता है? वो लिखा है, उसको पढ़ लो ना, बता दो ना पढ़ के। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, इसके लिए नाबार्ड, जैसे अभी वेयर हाउस के लिए भी नाबार्ड 25% सब्सिडी दे रहा है। अगर शैलो टाइप के वेयर हाउसेस बनाते हैं आप प्राइवेट, तो 25% नाबार्ड सब्सिडी देता है। और भी ऐसे अगर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चालू करते हैं तो नाबार्ड बहुत हेल्प करता है रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली। फिर ये सिडबी नाम सुना होगा आपने, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये अपनी स्टेट बैंक ने और हर बैंक ने अपनी एक सिडबी ब्रांच बना रखी है। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग ही करती है, दूसरे फाइनेंसेस नहीं करती है, खाली इंडस्ट्री को फाइनेंस करती है सिडबी, है ना। फिर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और फिर इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन नाम सुना होगा, ISI। ISI क्या होता है? ISI कहीं लगा हो देखा कोई प्रोडक्ट पे? ISI का एक नंबर रहता है प्रोडक्ट का, और ISI का एक मार्क लगा रहता है कोई प्रोडक्ट पे। हाँ, तो ISI के हिसाब से वो कंप्लाई कर रहा है क्वालिटी प्रोडक्ट को, है ना। फिर FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट के लिए सपोर्ट करता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या जनरली वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट के लिए सपोर्ट करता है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं आजकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सपोर्ट, अगर प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्टेबल है तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। फिर NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अपन ने बात करी थी, जो ग्रीन वाला टिप का लगा रहता है प्रोडक्ट के ऊपर, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। वो केवल वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के लिए रहता है। उस पर वो लाइसेंस लेने के बाद आपके प्रोडक्ट पे ग्रीन मार्क लगा सकते हैं। फंडिंग एंड फाइनेंसिंग। फंडिंग इज पुटिंग अप मनी टुवर्ड्स फाइनेंशियल गोल विदाउट द नीड ऑफ रिपेमेंट। इट्स एन investment in land building, plant machineries, equipments. Recurring funds are providing resource for furniture, fixture, furnishing, vehicle for transportation, computers, laptop, mobiles, etc. required for the project. फंडिंग क्या होता है बताओ ना, मतलब मैंने तो इतना पढ़ दिया आपको अभी। क्या है फंडिंग और फाइनेंसिंग में क्या डिफरेंस है बताओ? सब कॉमर्स वाले हो, बताओ ना। फाइनेंसिंग क्या होता है? अच्छा, फंडिंग तो बता दिया अपन ने अभी, फाइनेंसिंग क्या है? फाइनेंसिंग क्या होता है? वो फाइनेंसिंग, अब लेंडिंग मनी बैंक से भी फाइनेंस हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी फाइनेंस हो सकता है, कोई शेयर से भी अपना फाइनेंस कंपनी उपलब्ध करा सकती है अपने पास। तो ये रिसोर्सेस हैं उसके। तो फाइनेंसिंग क्या है? गेटिंग लोन्स ऑन इन्वेस्टमेंट, गेटिंग सम लोन्स ऑन इन्वेस्टमेंट इज ए फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग रिक्वायर्स ए रेगुलर रिपेमेंट विथ प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स। अब वो उनने मतलब EMI बना दी कि ये 3 महीने में आपको इतना रिपेमेंट ब्याज सहित करना है। It also allocate funds for growth of unit. It decides dividends, bonus, and distribution of shares to the shareholders. It raises capital through equity capital or liquidity, ensuring sufficient flow for company's operations. Financing may be granted by investors, financial institutions on returnable basis. तो फाइनेंसिंग इज ऑलवेज डन ऑन रिटर्नेबल बेसिस। फंडिंग में रिटर्न की जरूरत नहीं है, फंडिंग तो हमारे अंदर का मामला है, हमारी इंडस्ट्री का मामला, हम फंडिंग कर रहे हैं, पर फाइनेंस में रिटर्न करना है हमको विथ इंटरेस्ट। नेक्स्ट। अब वही चार्ट यहाँ अपन ने बनाया कि फंडिंग क्या है? इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इट्स एन ऑलरेडी ए बिजनेस कैपिटल, raises focus on obtaining as much revenue as possible. और फाइनेंस तो बोरो करते हैं अपन लोन के रूप में फ्रॉम फॉर ए प्रोजेक्ट। इट मे बी ए शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। मशीनरी के लिए जनरली शॉर्ट टर्म लोन रहता है, बिल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म रहता है। raises focus on obtaining finance is always concerned with a margin money 25% with a guarantee of repayment.
फाइनेंस में हमेशा 25% मार्जिन मनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लगाना होती है, और उसमें गारंटी भी वो कोई मॉर्गेज कर सकते हैं, हाइपोथिकेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स है वो। फंड में टेक ए फॉर्म ऑफ रिसोर्स, एक्सपर्टीज एंड टाइम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। तो फंड क्या होगा? रिसोर्स भी फंड है, एक्सपर्टीज भी फंड है, और टाइम इज फंड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं? नहीं तो प्रोडक्शन के मतलब इंजीनियर बैठे रहे और हड़ताल हो जाए और बोले मतलब हो जाएगा ऐसा, तो टाइम इज वैल्यूबल। टाइम हैज द मनी, टाइम इज फंड, टाइम इज आल्सो ए सॉर्ट ऑफ फंडिंग, रिसोर्स इज आल्सो ए सॉर्ट ऑफ फंडिंग। नेक्स्ट लाइन। अब एक छोटी सी आपको वो टीएटी करा लेते हैं। टीएटी उन्हें सबको पेपर दे दो, एक कहानी लिखने की, स्टोरी राइटिंग है। देयर इज अ थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट और 30 seconds यू हैव टू राइट। ये थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो है ये वो कैपेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर असेस करने के लिए की जाती है, जनरली नेवी में की जाती है। ये मतलब एनडीए के लोग जो टेस्ट लेते हैं उसमें टीएटी रहती है। ये 10 मार्क का पेपर रहता है, और इसमें आपको एक ये पिक्चर, यहाँ पिक्चर दिखाया जाएगा, और उस पर आपको एक स्टोरी लिखना है कि उस में इस पिक्चर में पहले कोई घटना हुई थी, अभी कुछ घटना चल रही है, और भविष्य में कुछ होने वाला है। तो इस आशय का एक आपको कहानी लिखना, स्टोरी राइटिंग करना है। तो उसको 30 सेकंड मिलेंगे, अभी थोड़ा आपको बताएंगे तब स्टार्ट करना। अभी तो पिक्चर डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द पिक्चर। इसमें पहले कुछ घटना हुई है इसके पहले, और अभी कुछ चल रहा है यहाँ इसमें, इस पिक्चर में, और भविष्य में कुछ होने वाला है। तो ये 3 बिंदुओं पे आपको एक स्टोरी लिखना है। तो उसके लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा, और अभी करते हैं, टाइम चालू करें क्या, स्टार्ट करें क्या, कि अभी थोड़ा देर से करें? हो गए सब? रेडी हो गए? स्टोरी लिखने के लिए रेडी हो गए सब? तो रेडी हो जाए तो हाथ उठा देना फिर। और इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि विराट कोहली और राष्ट्रपति का नाम वाम, वो ऐसा कुछ फाकालाजी नहीं करना है। उसको इसमें कोई स्टोरी बन रही है तो विराट कोहली नहीं आना चाहिए शब्द, मतलब, और राष्ट्रपति भी नहीं आना चाहिए इसमें। अभी टाइमर लगा दिया है, फिर अब यू स्टार्ट राइटिंग, है ना, देखना जैसे कर दें। स्टार्ट राइटिंग नाउ, कि पहले कुछ घटना हुई है इसके, अभी कुछ चल रहा है, और भविष्य में कुछ होने वाला है। ये 30 सेकंड में आपको लिख के देना है, सबमिट करिए। मतलब जल्दी हो जाएगा 30 सेकंड में। वो अभी 1 मिनट कर देते हैं, आपको 60 सेकंड कर देते हैं, लगता है शायद जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वैसे उसका स्टैंडर्ड टाइम 30 सेकंड है, पर 60 सेकंड कर देते हैं इसको। हो गया सर? टाइम इज अप नाउ, प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड सबमिट योर स्टोरीज। या आप कैलाश सर को ही सबमिट कर दीजिए। अच्छा, वो 1 मिनट और एक्सटेंड करने का बोल रहे हैं। चलिए आप 120 सेकंड लीजिए, पर लिखिए जल्दी लिखिए। Now start 120 seconds. You just stop it now. This involves what was going on, what is going on, and what will be going on in this picture.
वो तो देख लिया पिक्चर, तो उन्होंने देख लिया, बार बार थोड़ी देखना। Picture you have already seen, nothing, not to repeat again. And please submit this to Kailash sir. Huh? Your time is up now. Please stop writing. Huh? You may please submit here on this desk only your story. मुझे लग रहा है आपको कोई इंटरेस्टिंग लगी है कुछ कहानी लिखने की बात। वो आप नेक्स्ट वो आ जाइए, ये लास्ट वाला है ना, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज पे आ जाइए, बस चार्ट खत्म करते हैं। फिर ये तो अपन इसका डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट ये कलेक्ट होने के बाद डिस्कस करेंगे। इस पे आ जाओ, लास्ट वाले पेज, ये ना एमएससी, ये लास्ट वाला पेज है, ये टाइप करा हुआ है। अरे सॉरी, ये इसमें नहीं, इसमें नहीं टाइप किया हुआ है। हाँ, just last say I have added myself this Government of India Ministry of MSME, Micro, Small and Medium Enterprises, just to acquaint you from MSMEs. MSME is a important, and startup is a very important part of Government of India now for the overall development. Contribute to economic growth and development of our country. It's a seed bed of entrepreneurial skills and innovation, contribution to precise and accurate job works, assembling contribute to job creation, and MSME considered as backbone of the global economy. Based on annual turnover, the enterprises are classified in 3 categories. अब मुझे ये कैटेगरीज अभी पढ़ लो, फिर बताओ मुझे क्या क्या समझा इसमें। बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज में क्या है, एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़। टर्नओवर का है, टर्नओवर प्रोडक्शन का है, टर्नओवर सर्विसेज गिवन है, टर्नओवर जॉब वर्क का है। तो ये कितना है, उसकी लिमिट क्या है, अप टू 5 करोड़ इज ए माइक्रो एंटरप्राइजेज, है ना। और स्मॉल एंटरप्राइजेज में अप टू 50 करोड़, यानी फ्रॉम 5 करोड़ टू 50 करोड़ का जिसका टर्नओवर है, वो ऐसी सर्विसेज, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जॉब वर्क एक्टिविटी, ये क्या कहलाएगी, स्मॉल एंटरप्राइज। और फिर मीडियम एंटरप्राइज क्या कहलाएगी, जिसका कि टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है। टर्नओवर का प्रोडक्शन, जॉब वर्क या सर्विसेज रेंडर्ड जो भी है। फिर इंसेंटिव्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी मतलब एमएसएमई की बहुत हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस एंड टैक्स इंसेंटिव्स टू न्यू यूनिट। अब टैक्स इंसेंटिव्स क्या होते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स ये रहते हैं कि आप अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हो एमएसएमई में, तो आपका जो टैक्स है वो डिफर्ड कर देते हैं पेमेंट उसका, या फिर आपको 3 साल 5 साल की उसमें कैश सब्सिडी, मतलब टैक्स नहीं देना होता है नई इंडस्ट्री को। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, नए स्टार्टअप के लिए भी फायदा है, एमएसएमई के लिए फायदा है। एमएसएमईज आर, दीज आर आल्सो स्टार्टअप, एंड स्टार्टअप इज आल्सो वन ऑफ द गुड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें कुछ आप पूछना चाहते हैं और एमएसएमई के बारे में, तो बिल्कुल ओपन है। इसमें मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा कि सर्विस सेक्टर में थोड़ा रिस्क कम रहती है, मतलब यू आर रेंडरिंग सर्विस एंड अर्निंग समथिंग, बट मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क ज़्यादा हाई रिस्क है। बट हाई रिस्क होने के बाद हाई गेन्स भी है, मतलब आपको अगर आपका प्रोडक्ट सेटल हो जाता है, मार्केटिंग सेटल हो जाता है, आपका
सब ब्रांडिंग वगैरह सब व्यवस्थित हो जाता है, तो फिर उससे जैसा फायदे वाली कोई चीज नहीं है। तो हाई रिस्क हाई गेन्स इन मीडियम एंटरप्राइजेस, फिर वो उसका रिस्क का परसेंटेज नीचे नीचे जाते हैं तो कम होता जाता है ना। इसमें कुछ पूछ सकते हैं आप एमएसएमई की कोई डेफिनेशन में कुछ दिक्कत हो तो, क्योंकि ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लियर कट मतलब ये डेफिनेशन है। अभी टर्नओवर में कुछ पता करना हो तो टर्नओवर में मैंने बता दिया कि रेंडर्ड सर्विसेज, प्रोडक्शन जो भी हुआ है प्रोडक्शन, या जॉब वर्क जितना भी क्वांटिटी में किया है, दैट क्वांटम इज ए टर्नओवर, और इट इज इन रुपीज। दिस इज इन रुपीज, मतलब वो क्वांटिटी में नहीं है, रुपीज में। कैपेसिटी अपन क्वांटिटी में ली थी। वो हो गया क्या? अब वो टीएटी का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब आपके मार्किंग का तो टाइम नहीं है, पर बता देता हूं मैं वो टीएटी क्यों लेते हैं अपन, बता देते हैं। अब आपने अच्छा ही लिखा होगा वो तो। टीएटी का ये रहता है उद्देश्य के 10 मार्क्स रहते हैं इसमें टीएटी में। पहला कि आपकी जो कहानी जो आपने बनाई है, जो लिखी है, दैट शुड बी अचीवमेंट इमेजरी। एक तो टास्क इमेजरी होती है, बिजनेस तो टास्क इमेजरी होते हैं हमेशा, अपन ने जो पहले पढ़ा है। अब ये द स्टोरी ऑफ इंडस्ट्री शुड बी अचीवमेंट इमेजरी। इमेजिनेशन कैसा होना चाहिए? अचीवमेंट होना चाहिए कुछ, वी हैव अचीव्ड समथिंग। तो अब ये मतलब वो विराट कोहली खड़ा है और राष्ट्रपति खड़े, वो नहीं लिखना है उसमें अचीव क्या कर रहे हो आप स्टोरी में। फिर सेकंड है गोल एंटिसिपेशन पॉजिटिव। गोल एंटिसिपेट आपने क्या किया पॉजिटिव। यानी विराट कोहली ने इतनी मेहनत करी और आज वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, तो उसका गोल एंटिसिपेटिव पॉजिटिव आपका उसमें मेंशन होना चाहिए कि क्रिकेट प्लेयर हैज वर्क सो हार्ड। फिर गोल एंटिसिपेशन निगेटिव। अब गोल एंटिसिपेशन निगेटिव क्या हो सकता है? अब विराट कोहली कई बार परेशानी में भी आया है, तो उसका निगेटिव गोल एंटिसिपेशन भी है, तो वो भी मेंशन करिए उसमें। तो उसका एक पॉइंट, उसका भी एक मार्क है उसका। फिर नीड टुवर्ड्स ग्रोथ। अब ग्रोथ की उसकी जरूरत क्यों है विराट कोहली को? विराट कोहली के बाद बहुत पैसा, करोड़ों रुपए, अभी काय को क्रिकेट खेलता है वो, क्या नीड है बताओ? तो वो आपको लिखना पड़ेगा। नीड यही है कि मतलब स्थापित तो हो गया है, ऐसा तो है ही नहीं उसको कुछ बनना है कोई ना। वो फिर नदी जैसा है कि बहते ही रहना है, नहीं तो फिर वो उसकी लाइफ रुक जाएगी, आगे प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। अगर वो इतना पैसा कमा के बैठ जाएगा तो क्या फायदा है फिर, मतलब। तो उसको आगे भी प्रोपोगेशन होना है, ग्रोथ करना है उसको, तो वो उसकी नीड भी लिखना जरूरी। फिर हेल्प फ्रॉम एबल पर्सन्स एंड मीडिया। अब विराट कोहली हेल्प अपने टीम से जरूर लेता है, तो आप भी जैसे इंडस्ट्री लगाते हैं तो अपनी टीम से हेल्प लेना बहुत जरूरी है। कोई छोटा आदमी भी आपको कोई सजेशन दे रहा है तो उसको ध्यान से सुनिए, उसमें विचार कीजिए कि यार ये क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या बात है, और ये अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या मदद कर रहा है। ये हो गया आपका हेल्प। फिर फीलिंग पॉजिटिव, फीलिंग निगेटिव, इसके एक मार्क हैं। तो आपने उसमें जो भी स्टोरी में लिखना था कि इसमें क्या पॉजिटिव फीलिंग थी और निगेटिव फीलिंग क्या क्या हो सकती थी। फिर उसके बाद एक एक्टिविटी क्या है, तो एक्टिविटी तो यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप शुड वर्क फॉर 24/7। उसको तो 24 घंटे 7 दिन काम करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है एंटरप्रेन्योर बनना है। तो वो तो फिर रात को 11 बजे भी सोएगा तो पूरा प्रोडक्ट का भाव पूछेगा और फिर सोएगा, नहीं तो फिर वो एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, मतलब। तो वो क्या है, इनोवेटिव आदमी। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन मैंने करी ना कि वो कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसका इनोवेटिव होना चाहिए। यानी वो फिर उसने वही जरूरी नहीं कि 11 बज गए और 1 बज गया और छुट्टी हो गई, वो काम नहीं है इंडस्ट्री में, वो काम नहीं है ना। 24/7। और फिर वर्ल्डली ब्लॉक्स, यानी कुछ क्या रहता है कि वर्ल्डली ब्लॉक्स रहते हैं। कैसे वर्ल्डली ब्लॉक्स? कैसे, अब मैंने कोई रिमोट एरिया में इंडस्ट्री डाल दी, लेबर नहीं मिल रही है, फिर वहाँ का कोई मौसम खराब है, तो ये अपने हाथ में नहीं है, तो उनकी भी विचार करके इंडस्ट्री लगाना है अपने को। वर्ल्डली ब्लॉक्स, जो सांसारिक बाधाएं बाहर की, एनवायरमेंट प्रॉब्लम, वो सब देख के आपको इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट करना है। फिर पर्सनल ब्लॉक्स, फिर अपने कुछ पर्सनल ब्लॉक्स है।
अब कोई जैसे पर्सनल ब्लॉक्स ये है कि वो उसको मतलब ज़्यादा जल्दी चलना नहीं आता, इंग्लिश बोलना नहीं आता, कई तरह के ब्लॉक्स हो सकते हैं, मतलब या कोई और भी मतलब हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ब्लॉक्स को इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने को कंसिडर करके चलना है। ये फैमिली प्रॉब्लम्स है, ये भी लेके चलना है। तो ये भी इसका भी एक पॉइंट है, एक मार्क है इसका। तो इस तरह से अपने मार्क आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। थैंक यू। अब आप कोई सवाल जरूर करें, ऐसा नहीं है बिल्कुल है, मतलब कोई, मैंने कहा ना वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये इंटरएक्टिव, मतलब जरूर आपको सवाल तो 10-12 आए होंगे, अभी तो 15 आए होंगे, तो एक एक करते पूछते जाइए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे ये पूछना था, एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर दोनों के अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है? मैंने वही आपको बताया था कि बिजनेसमैन इज ऑलवेज अ टास्क इमेजरी पर्सन। उसका एक गोल है, टास्क है कि मेरे को, मैं होलसेलर से माल लेना है और रिटेलर को बेचना है, मैंने बिजनेस कर रहा हूँ। पर इंडस्ट्री वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर को, इंडस्ट्रियलिस्ट तो बनने के बाद एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्री चलाने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। एंटरप्रेन्योर को क्या है कि उसको तो अचीव करना है कुछ टारगेट गोल्स, तो अचीवमेंट के लिए तो उसको फिर इनोवेटिव रहना पड़ेगा और अपने आप को एक्सेल करना पड़ेगा, और उसका फिर इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर का व्यू ही अलग हो जाएगा। वो हो जाएगा मतलब अचीवमेंट इमेजरी। कैसा हो जाएगा वो आदमी, वो पर्सन, दैट पर्सन विल बी अचीवमेंट इमेजरी, एंड बिजनेसमैन इज टास्क इमेजरी, सिंपल टास्क। मेरे को ये टास्क करना है, बिजनेस करना है, होलसेलर से लाना है और रिटेलर को बेचना है, कस्टमर। सेक्टर्स, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस की कोई स्टेज नहीं होती, वो सीढ़ी चढ़ने जैसा ही है। पहली सीढ़ी चढ़ो, दूसरी चढ़ो, तीसरी चढ़ो, फिर फर्स्ट फ्लोर आता है, या तो फिर लिफ्ट से भी जा सकते हो अगर लिफ्ट लगाई हो तो, है ना। सक्सेस का ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब असेसमेंट क्या, मुझे बताओ, आप बताओ क्या असेसमेंट सक्सेस का? वही 24/7 डेज काम करना है, सक्सेस है और क्या। बहुत अच्छा आपका इंटरेक्शन रहा, मतलब आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ कि आपके जीवन में आगे बहुत अच्छे उद्यमी एंटरप्रेन्योर बने, यही शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। Thank you, sir, for enlightening us and imparting your wisdom. As a quick recap concluding our seminar, today we learn about business ideation, definition and nature of entrepreneurship, market research and analysis, project profile on various factors, business plan, financial management and its role, dividend decision, MSME guidelines. Now, I would like to invite Purnima ma'am to present a memento to our esteemed guest. Ma'am, please join us on stage. Thank you, ma'am. Let's take a moment to applaud for our honorable guest, all the members of e-learning departments, esteemed faculties and the students for their contribution and making this a glorious event. On Monday, there will be a seminar on topic banking at 10 a.m. in the Engineering Premium Auditorium. Thank you all for your presence and participation.